السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے وضو کا بیان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھوں کو دھو اور سروں کا مسح کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ چند احادیث کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، اور جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلیں یہاں تک کہ ناخنوں سے۔ پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز پڑھنا اس کے علاوہ ہے۔ جو شخص ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو 2 بار کرے اس کو دگنا ثواب ہے، اور جو 3 بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ جو شخص سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ جو شخص وضو پر وضو کرے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آیت کریمہ جو میں نے بیان کی ہیں اسے ثابت ہوا ہے کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے، بھیگ جانے یا تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 آدھ بوند بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس سے وضو یا غسل ادا ہوگا۔ اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے، لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور نمازیں برباد جاتی ہیں۔ بدن میں بعض جگہ ایسی ہیں کہ جب تک ان کا خاص خیال نہ رکھا جائے ان پر پانی نہ بہے گا، جس کی تشریح ہر عضو میں بیان کی جائے گی۔ کسی عضو پر تر ہاتھ پھیرنے یا تری پہنچنے کو مسح کہتے ہیں۔ منہ دھونا شروع پیشانی سے، یعنی جہاں تک عموماً سر کے بال ہوتے ہیں، تھوڑی یعنی نیچے کی دانت جمنے کی جگہ تک لمبائی میں، اور ایک کان سے دوسرے کان تک چوڑائی میں، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے میں 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ لبوں کا وہ حصہ جو عموماً اور عادتاً لب بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ یوں ہی رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کمپٹی کہتے ہیں اس کا دھونا بھی فرض ہے۔ نت کا سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے، اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نت کو حرکت دے، ورنہ حرکت دینا ضروری نہیں۔ ہاتھ دھونا، اس حکم میں کوہنیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کوہنیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرا برابر دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہیں ہوگا۔ ہر قسم کے جائز اور ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کا دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کا دھونے سے پانی بہہ جاتا ہے تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کوئی ضروری نہیں۔ ہاتھوں کی 8 گائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کے بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا مگر کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا تو وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔
औरतों को फंसी चूड़ियों का शौक होता है, उन्हें हटा हटा कर पानी बहाएं। सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई, और जो बाल हो तो खास सर के बालों की चौथाई का मसा फर्ज है। सर से नीचे जो बाल लटकते हैं उनका मसा काफी नहीं। मसा करने के लिए हाथ तर होना चाहिए। हुआ किसी उज़ू को धोने के बाद हाथ में तरी रह गई या नए पानी से हाथ तर कर लिया हो, हाँ, अगर किसी उज़ू के मसा के बाद हाथ में जो तरी रह जाएगी वो दूसरे उज़ू के मसा के लिए काफी ना होगी। दुपट्टे पर मसा हरगिज काफी नहीं, मगर जबकि दुपट्टा इतना बारीक और तरी इतनी ज्यादा हो कि कपड़े से फूट कर चौथाई सर या बालों को तर कर दे तो मसा हो जाएगा। इस हुक्म में गिट्टे भी दाखिल हैं। गाइयां, उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियां और कूंची सबका धोना फर्ज है। छल्ले और सब कहने के घुटनों पर या उनसे नीचे हों, उनका हुक्म वही है जो ऊपर बयान किया गया है। आंखों के ढीले और पपोटों की अंतर की सतह का धोना कुछ दरकार नहीं, बल्कि ना चाहिए कि नुकसान देता हो। जिन अज़ा का धोना फर्ज है इन पर पानी बह जाना शर्त है, अगरचे बिला इरादे अपने फेल से ना हो। मसलन मींह बरसा और अज़ा वजू के हर हिस्से से दो दो कतरे पानी के बह गए, वो अज़ा धुल गए, या फव्वार बरसी और चौथाई सर को तरी पहुंच गई तो मसा सर का फर्ज उतर गया। जिस चीज की इंसान को जरूरत पड़ती रहती है और उसकी देखभाल और एहतियात में हरज हो, उसका नाखूनों के अंदर या ऊपर या और कहीं लगा रह जाना वजू होने से नहीं रोकता, अगरचे वो चीज जीरमदार हो, अगरचे उसके नीचे पानी ना पहुंचे, अगरचे सख्त चीज हो जिसे पकाने गूंदने वालियों के लिए आटा, औरत के लिए मेहंदी या कोई पलक में सुरमा, काजिल, इसी तरह बदन का मैल, मट्टी, गुबार, मक्खी, मच्छर की बीक वगैरह। औरत के हाथ पांव पर मेहंदी का तय लगा रह गया और खबर ना हुई तो वजू गुसल हो जाएगा। हाँ, जब मालूम हो जाए तो छुड़ाकर वहाँ पानी बहा दे। यूं ही सुरमा आँख के कोए या पलक में रह गया और खबर ना हुई तो कोई हरज नहीं। किसी के माथे पर अफशां चुनी हो और ऊपर से पानी बहा दिया, या हाथ पांव के नाखूनों पर सुर्खी का जीरम यानी कि तह मौजूद है और वजू कर लिया तो वजू ना होगा, कि ये ना ज़रूरत की चीज़ें हैं और ना इनकी निगहदाश्त और एहतियात में कोई हरज है, लिहाजा माथे का गूंद और सुर्खी का जीरम दूर करके वजू गुस्ल करना चाहिए। अब है वजू की सुन्नतें। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह से शुरू करना, नंबर 3 पहले हाथों को घुटनों तक तीन बार धोना, नंबर 4 मसवाक करना। ये औरतों के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है, लेकिन अगर वो ना करें तो हरज नहीं, इनके लिए मसीह काफ़ी है। इनके दांत और मसूड़े बनिस्बत मर्दों के कमज़ोर होते हैं। नंबर 5 3 चुल्लू पानी से 3 कुलियां करना, नंबर 6 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 7 बाएं हाथ से नाक साफ करना, नंबर 8 हाथ पांव की उंगलियों का हलाल करना, नंबर 9 जो आज़ाद धोने की हैं उनको 3 बार धोना, नंबर 10 पूरे सर का 1 बार मसा करना, नंबर 11 साथ ही दोनों कानों का उसी पानी से मसा करना, नंबर 12 तरतीब से वज़ू करना कि पहले मुंह फिर हाथ धोएं, फिर सर का मसा करें, फिर पाँव धोएं, नंबर 13 आज़ा को इस तरह धोना कि पहले वाला वज़ू सूखने ना पाए।
वजू के मुस्तजबात। नंबर 1, किबला रूह ऊंची जगह बैठ कर वजू करना। नंबर 2, वजू का पानी पाक जगह पर गिराना। नंबर 3, पानी बहाते वक्त हर हिस्से पर तर हाथ फेर लेना। नंबर 4, अपने हाथ से पानी भरना। नंबर 5, वजू करने में बगैर ज़रूरत दूसरों से मदद ना लेना। नंबर 6, वक़्त से पहले वजू कर लेना। नंबर 7, अंगूठी वगैरह को हरकत देना, अगर तंग हो तो हिलाना ज़रूरी है। नंबर 8, इत्मीनान से वजू करना। नंबर 9, दोनों हाथों से मुंह धोना। नंबर 10, हर वजू को धोते वक्त नियत वजू हाजिर रहना। नंबर 11, बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ वगैरह दुआएं पढ़ना। नंबर 12, गर्दन का मसा करना। नंबर 13, वजू से फारग होते ही आसमान की तरफ मुंह करके खड़े होकर कलमा शहादत और इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र पढ़ना, यानी कि पूरी सूरत पढ़ना। वजू का बचा हुआ थोड़ा पानी पी लेना। बगैर ज़रूरत बदन को कपड़े से बिल्कुल खुशक ना करना। इसके बाद है वजू करने का मसनून तरीका। पहले नियत करके वजू करने, किबलाए रूह ऊंची जगह बैठें, वजू का पानी पाक जगह गिराएं और वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम पढ़ लें। फिर दोनों हाथ पूंछों तक 3 बार धोएं और उसका ख्याल रखें कि उंगलियों की गायें और करवटें पानी बहने से ना रह जाएं, वरना वजू ना होगा। फिर 3 मरतबा मसवाक करें। फिर 3 बार इस तरह कुल्ली करें कि मुंह की तमाम जड़ों और दांतों की सब खिड़कियों में गर्ज हर बार मुंह के अंदर और हर पुर्जा पर पानी बह जाए। और रोज़ा ना हो तो गरारा करें और कुल्ली या गरगरा दाएं हाथ से पानी लेकर करें। फिर बाएं हाथ के छिंगली नाक में डालकर नाक साफ करें और 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं कि जहां तक नरम गोश्त होता है हर बार उस पर पानी बह जाए। और रोज़ा ना हो तो नाक के जड़ तक पानी पहुंचाएं। ये काम दाएं हाथ से करें। फिर मुंह धोने के लिए दोनों हाथों से माथों के सिरे पर ऐसा फैलाकर पानी डालें कि ऊपर का भी कुछ हिस्सा धुल जाए और दोनों रुखसार साथ ही साथ धोएं। और मुंह पर पानी लंबाई में पेशानी के बालों की जड़ों से थोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान से दूसरे कान तक बहाएं। फिर पहले दायां फिर बायां दोनों हाथ कोहनियों तक इस तरह धोएं कि पानी की धार नाखूनों से कोहनियों तक बराबर पड़ती चली जाए। और उसका ख्याल रखें कि एक रोंगटा भी खुशक ना रह जाए। अगर पानी किसी बाल की जड़ को तर करता हुआ बह गया और ऊपरी हिस्सा खुशक रह गया तो वजू ना होगा। फिर पूरे सर का मसा करें और उसका तरीका ये है कि दोनों हाथों का अंगूठा और कलमा की उंगली छोड़कर एक हाथ की बाकी उंगलियों का सिरा दूसरे हाथ की तीनों उंगलियों के सिरे से मिलाएं और पेशानी के बाल पर रखकर भी तक इस तरह खींचते हुए ले जाएं कि हथेलियां सर से जुदा रहें। वहां से हथेलियों से मसा करते हुए पेशानी तक वापस लाएं और कलमा की उंगलियां के पेट से कानों के पेट का और अंगूठों के पेट से कानों की पुश्त का और उंगलियों की पुश्त से गर्दन का मसा करें। गले पर हाथ ना लगाएं, ये बिदत है। फिर 3-3 बार पहले दायां फिर बायां दोनों पाँव टुकने के ऊपर निसफ पिंडली तक धोएं और धोने में हर बार पानी पाँव के नाखूनों की तरफ से गिट्टों के ऊपर तक लाएं कि सुन्नत यही है। और पाँव की उंगलियों का खलाल बाएं हाथ की छिंगली से करें। वज़ू के बाद म्यानी पर कुछ पानी छिड़क लें कि शैतानी वसवसे को दूर करता है। फिर बचा हुआ पानी खड़े होकर थोड़ा सा पी लें कि शफा बख्शता है। और आसमान की तरफ मुंह करके कलमा शहादत और सूरत इन्ना अंज़लनाहु पढ़ लें तो बेहतर होगा।
اب اس کے بعد ہے وضو کے مکروہات۔ نمبر 1، وضو کے لیے ناپاک جگہ بیٹھنا یا ناپاک جگہ وضو کا پانی گرانا۔ نمبر 2، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں پانی ٹپکانا۔ نمبر 3، مسجد کے اندر وضو کرنا۔ نمبر 4، پانی میں تھوکنا، ناک سنکنا اگرچہ دریا یا حوض ہو۔ نمبر 5، قبلے کی طرف تھوکنا یا کلی کرنا۔ نمبر 6، بے ضرورت دنیا کی بات کرنا۔ نمبر 7، زیادہ پانی خرچ کرنا، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ نمبر 9، چہرے پر زور سے پانی مارنا۔ نمبر 10، ایک ہاتھ سے منہ دھونا کہ یہ ہندوؤں کافروں کا طریقہ ہے۔ نمبر 11، گلے کا مسح کرنا۔ یہ تھے وضو کے مکروہات۔ نمبر 12، بائیں ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 13، دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 14، 3 نئے پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ نمبر 15، دودھ کے گرم پانی سے وضو کرنا کہ وہ برس یعنی کہ سفید داغ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 16، ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کر لینا۔ نمبر 17، کسی سنت کو چھوڑ دینا۔ اب اس کے بعد ہے وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں شریعت مطہرہ نے تو نواقص وضو قرار دیا ہے، یعنی ان میں سے اگر ایک بھی پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں بات یہ ہے، آگے یا پیچھے کے مقام سے پیشاب، پخانہ وغیرہ، کسی نجاست یا کیڑے یا پتھری کا نکلنا یا پیچھے سے ہوا کا خارج ہونا، خون، پیپ یا زرد پانی جبکہ کہیں سے نکل کر ایسی جگہ بہہ کر چلا جائے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، آنکھ، کان، ناف وغیرہ میں دانہ یا ناسور یا کوئی بیماری ہو اور اس وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے گا وضو توڑ دے گا۔ دکھتی ہوئی آنکھ سے جو آنسو بہتا ہے اس کا یہی حکم ہے کہ یہ پانی خود بھی نجس ہے۔ کھانے یا پانی یا سفرہ کے منہ بر کہہ یوں ہی جمے ہوئے خون کی منہ بر کہہ اور بہتے ہوئے خون کی کہہ جبکہ تھوک اس پر غالب نہ ہو وضو توڑ دیتی ہے۔ بے ہوشی، غشی، پاگل پن اور اتنا نشہ کے چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے وضو توڑ دیتا ہے۔ بالغ کا کہکا یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں جبکہ جاگتے میں اور رکوع و سجود والی نماز میں ہو وضو توڑ دیتا ہے۔ سو جانے سے بھی وضو جاتا رہتا ہے، مثلا لیٹے لیٹے آنکھ لگ گئی یا کسی چیز کے سہارے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی کہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو گر پڑتے تو وضو جاتا رہا، اور اگر نماز میں بیٹھے بیٹھے یا سجدے میں قصدن سو گئے تو بھی وضو گیا اور نماز بھی گئی۔ منہ سے خون کا نکلنا بھی جبکہ تھوک پر غالب ہو ناقص وضو ہے۔ وہ صورتیں جن میں وضو نہیں جاتا، خون یا پیپ یا زرد پانی ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھر آتا ہے۔ اپنی یا پرائی شرمگاہ، پیشاب یا بخانہ کی جگہ پر ہاتھ لگایا یا خلال کیا یا مسواک کی یا انگلی سے دانت مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر پایا یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں، ناک صاف کی اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، کان میں تیل ڈالا تھا اور ایک دن بعد کان یا ناک سے نکلا،
जूं, खटमल, मच्छर या पिस्सू ने खून चूसा। बलगम की कैद जितनी भी हो, बैठे बैठे झोंके लेते रहे या ऊँघते रहे। नमाज के अंदर सोते या नमाज जनाजा या सजदा तलावत में कहका लगाया तो उन सूरतों में वज़ू ना जाएगा और आखिरी सूरत में नमाज या सजदा फासिद है। अपनी या पराई शर्मगाह देखने से वज़ू जाता रहता है, जैसा कि मशहूर है, महज बेअसल बात है। हाँ, औरत का बिला ज़रूरत बदन खुला रखना, अगरचे वो सर हो या कलाई या बाजू, दूसरे के सामने खोलना हराम है। वज़ू के मुतफर्रक मसाइल। खुद पानी का बदन के हिस्सों पर बह जाना ज़रूरी है। अगर हाथ या पाँव के नीचे पर पानी डाला, कोहनियों और पाँव के घुटनों तक ना पहुंचा था कि बीच में हाथ लगाकर आखिर वज़ू तक फेर दिया, जैसा कि बहुत लोग करते हैं, तो वज़ू नहीं होगा। कि ये बहाना ना हो, चिपड़ना हो और फ़र्ज़ बहाना था। धोने से पहले भीगा हाथ फेर ले कि पानी जल्द दौड़ता है और थोड़ा बहुत काम देता है। ख़ुसूसन जाड़े में उसकी ज़्यादा हाजत है कि अज़ा में खुश्की होती है, बहती दार बीच में जगह छोड़ जाती है। जैसा कि मालूम होता है कि इस तरकीब से वज़ू भी कामिल होगा और पानी में असराफ यानी फजूल खर्ची से भी इंसान बचा रहेगा। बहुत से लोग यूँ किया करते हैं कि नाक या आँख या मुँह पर चुल्लू डालकर सारे मुंह पर हाथ फेर लेते हैं और ये समझते हैं कि मुंह धुल गया। हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई मायने नहीं रखता और इस तरह धोने में मुंह नहीं धुलता और वज़ू नहीं होता। यूं ही चुल्लू में पानी लेकर कलाई पर उल्ट लेना हरगिज़ काफ़ी नहीं। जो हिस्से धोने के हैं तहारत में, उनमें से हर हिस्से का पूरे 3 बार धोना सुन्नते मुक़द्दा है। लिहाजा हर मर्तबा इस तरह धोएं कि अज़ू का कोई हिस्सा रह ना जाए, वरना सुन्नत अदा ना होगी और उसमें चुल्लुओं की गिनती नहीं बल्कि पूरा अज़ू धोने की गिनती है कि वो 3 मर्तबा हो, अगरचे कितने ही चुल्लुओं से। किसी बीमारी की वजह से पाँव की अंगूठों में इस कदर खींच कर तागा बांधा जाता है कि पानी का बहना तो दरकिनार, तागे के नीचे तर भी नहीं होता, उसे बचना लाजिम है। पानी एहतियात से खर्च करें, बेसबाब ज़्यादा खर्च करने से बचें। बाज़ लोग चुल्लू लेने में पानी ऐसा डालते हैं कि अहल के उबल जाता है, हालांकि जो गिरा बेकार हो गया, उससे एहतियात कीजिए। जिस काम के लिए ले लें उसका अंदाज़ा कर लें। मसलन नाक में पानी चढ़ाने के लिए आधा चुल्लू काफ़ी है। लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल दे लें या जल्दी 3 बार पिच कर लेने से कुल्ली और नाक के फटक या नोक से पानी चला लेने से वज़ू में सुन्नत अदा हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं, बल्कि उसकी आदत डालना गुनाह है और गुस्ल में ऐसा करने से तो गुस्ल अदा ही नहीं होता, ताकि फ़र्ज़ रह जाता है कि इस इस्तंजा के बाद जो पानी बर्तन में बच रहा है पाक ही है, इससे वज़ू जायज़ है और उसका फेंक देना गुनाह नाजायज़ है। यूं ही वज़ू के बाद लोटे में जो पानी बच जाता है वो दूसरे वज़ू या किसी और काम में आ सकता है। लोग उसे फेंक देते हैं, ये